Hello, dear students. Welcome back to my channel, Educational Corner. I hope all of you are fine. Today, we are going to start with chapter number 8, Measurement of Time and Motion, from our Science Curiosity book of Standard 7. So, let us understand what we will learn in this chapter. Measurement of time and motion. So, when we talk about time, have you ever wondered that if you did not have a clock, how would you decide what time of day it is? How can we measure time? Do you know our ancestors, they noticed many events which repeated in itself, like sunrise in morning. So the time between one sunrise and the next was a day. But now we have clocks and watches, the most common time measuring devices. So we are going to learn about the devices which we use for measuring time and how do we measure the time and motion. So what is the meaning of motion? Motion is a change in position which is compared to a place or object that is not moving. So motion basically means movement. An object which is moving, we call it in motion. So we are going to study this chapter, measurement of time and motion. So let's start reading this chapter and understanding the chapter. Measurement of time and motion. Prerna and her younger sister are watching a sports channel on television. Prerna enjoys running and she has been declared the fastest runner among the girls in her district for winning the 100-meter sprint at an inter-school competition held at the डिस्ट्रिक्ट लेवल. सो प्रेरणा और जो उसकी यंगर सिस्टर, उसकी जो छोटी सिस्टर है, वो एक स्पोर्ट्स चैनल टेलीविज़न पे देख रहे थे. प्रेरणा को भागना बहुत अच्छा लगता था और उसको फास्टेस्ट रनर जो है उसके लिए भी उसको फास्टेस्ट रनर बोला गया था जब वो एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में गई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. तो 100 मीटर की स्प्रिंट रेस उसने वहाँ पर जीती थी. शी इज़ नाउ ट्रेनिंग टू कम्पीट एट द स्टेट लेवल. तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रेरणा ऑलरेडी जीत चुकी है और अब जो है वो क्या कर रही है, वो ट्रेनिंग ले रही है ताकि वो स्टेट लेवल पर खेल सके. शी ड्रीम्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल इन 100 मीटर स्प्रिंट कॉन्टेस्ट इन फ्यूचर. तो अब वो क्या सोचती है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे. कहाँ? एक इंटरनेशनल लेवल पे जो 100 मीटर की स्प्रिंट रेस हो. स्प्रिंट कॉन्टेस्ट इन फ्यूचर. स्प्रिंट क्या होता है? स्प्रिंट होता है जब आप फुल स्पीड पर रन करते हो, ठीक है, ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, छोटे डिस्टेंस पे आपको फुल स्पीड पे रन करना होता है, उसको हम स्प्रिंट बोलते हैं. तो स्प्रिंट कॉन्टेस्ट में उसने पार्टिसिपेट किया 100 मीटर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में, जिसमें वो जीती डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. अब वो अपने आप को स्टेट लेवल के लिए कम्पीट कर रही है और उसका सपना है कि वो इंडिया को भी इंटरनेशनल लेवल पे 100 मीटर स्प्रिंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करे. इंटरनेशनल मतलब बाहर की कंट्रीज. While watching the rerun of sprints at the Olympic Games held in the past, Prerna is always amazed at the measurement of time taken of the race. For the race is so advanced that they could identify the winner even when two sprinters seem to cross the finish line almost together. Okay, तो जब वो रेस देख रही थी ओलंपिक गेम्स का देख रही थी, जब वो हमेशा ये सोचती रहती थी कि जब भी कि टाइम को किस तरीके से मेजर किया जाता है जब बहुत सारे लोग रेस कर रहे हों, ठीक है. इवन अगर विनर को तब भी आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जब दो रेस कर रहे हैं और इकट्ठे ही वो बिल्कुल लाइन पे आकर जो है वो दोनों इकट्ठे ही रेस को फिनिश करते हैं, तब भी उस टाइम पर भी जो है वो विनर चूज कर लिया जाता है. However, in her school, the sports teacher only used a special kind of watch called a stopwatch for timing the school races. तो उनके स्कूल में जो स्पोर्ट्स टीचर है वो एक अलग तरीके की स्पेशल तरीके की वॉच को यूज़ करते हैं जिसे बोला जाता है स्टॉप वॉच,
ठीक है, स्कूल के रेसेस के लिए। ये स्टॉप वॉच आपके मोबाइल्स में भी अवेलेबल होती है, ठीक है, और अलग से भी आती है स्टॉप वॉच। तो इस पे जो है ना एक टाइम सेट कर देते हैं और ये एक टाइम के बाद वो बजने लग जाती है। तो she had noticed her mother wearing a watch on her wrist and her sister looking at her mobile phone when she needed to check the time. Okay, so the mother is wearing उसकी मदर ने क्या पहना हुआ था, रिस्ट पे एक वॉच पहनी हुई थी, और उसकी जो सिस्टर है वो मोबाइल फ़ोन में जो है वो जब भी टाइम देखना होता था वो मोबाइल फ़ोन में देखती थी। मतलब उसकी मदर के पास रिस्ट वॉच थी और उसकी सिस्टर के पास मोबाइल फ़ोन था जिस पे वो टाइम देखती थी। Her uncle used a braille watch and he had recently acquired a talking watch that announced the time at the touch of button. तो उसके जो अंकल थे वो जैसे ही बटन टच कर वॉच ऐसी वॉच थी, टॉकिंग वॉच थी जिसका बटन टच करते ही वो टाइम जो है वो बोल देती थी। There was also a large clock on the wall near the school entrance. और स्कूल में जो है वो एंट्रेंस करते हैं, मतलब एकदम से एंटर करते ही स्कूल में एक बहुत बड़ी वॉल क्लॉक थी। Her thoughts turned to people in the ancient past who did not have the modern gadgets we have today, and she wondered. Okay, so she was thinking कि हमारे पास तो इतनी चीज़ें हैं, हमें जब टाइम को मेजर करना है तो हम इजीली टाइम पता लगा सकते हैं, बट जो एंशियंट टाइम में, पुराने ज़माने में जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके पास इतने मॉडर्न गैजेट्स नहीं थे, तो वो किस तरीके से टाइम जो है वो पता लगाते थे। हाउ वॉज टाइम मेजर्ड व्हेन देयर वर नो क्लॉक्स एंड वॉचेस? जब क्लॉक और वॉच नहीं होती थी तो टाइम को कैसे मेजर किया जाता था? बिफोर द इन्वेंशन ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस टाइम वॉज मेजर्ड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक सनडाइल्स एंड आवर ग्लासेस। ठीक है, सनडाइल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि सन की शेडो को कास्ट करके किस तरीके से वो पता लगाते थे कि अभी कौन सा पार्ट चल रहा है, मतलब डे का कौन सा पार्ट चल रहा है। ठीक है, और आर ग्लासेस जो सैंड ग्लासेस भी होते हैं जिसमें सैंड भरी होती है और एक तरफ से नीचे दूसरी तरफ तक सैंड जाती है। आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो। Measurement of time. Humans got interested in keeping track of time long ago. They started noticing that many events in nature repeat themselves after definite interval of time. ओके, तो ह्यूमंस जो एंसेस्टर्स थे हमारे, उन्होंने ये चीज़ जो है नोटिस करी कि कई इवेंट्स जो है ना नेचर में कुछ रिपीट होते हैं, आफ्टर एक थोड़े टाइम के बाद वो रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल, राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन। ठीक है, सन राइज हो रहा है तो डे है, और अगर सेट हो रहा है तो वो नाइट की तरफ जा रहा है। तो सन राइजिंग और सेटिंग हर थोड़ी देर बाद ये चीज़ हो रही थी, हर थोड़े टाइम के बाद। द फेजेस ऑफ मून, ठीक है, कि मून जो है वो कब फुल है। ठीक है, जब मून फुल है उसके बाद वो मंथ बाद, एक मंथ बाद ही वो दोबारा से फुल होगा। तो इससे पता लग जाता था कि जो है क्या मंथ चल रहा है। ठीक है, मंथ कैसे वो मेजर करते थे, मून के फेजेस को देखकर कि अगर फुल मून है और एग्जैक्टली एक महीने बाद फिर से दोबारा से फुल मून आता था तो वो समझ जाते थे कि ये मंथ जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चेंजिंग सीजन जैसे जैसे चेंज होते थे तो उससे भी आइडिया हो जाता था टाइम का। दे स्टार्टेड यूजिंग साइकिल्स ऑफ दीज इवेंट्स फॉर टाइम कीपिंग। तो इन साइकिल्स को उन्होंने, इन इवेंट्स को यूज किया टाइम को मेजर करने के लिए। फर्स्ट दे डिवाइज्ड कैलेंडर। सबसे पहले डिवाइस मतलब उन्होंने कैलेंडर बनाए। अ डे वॉज डिफाइंड बाय साइकिल ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन। तो एक डे उनको कैसे पता लगा कि ये एक पूरा डे है? बाय द साइकिल ऑफ, जैसे ही सन राइज होता था तो वो डे होता था, और सेटिंग ऑफ सन उनको समझ आता था अब रात हो गई। देन बिगेन द क्वेस्ट टू फाइंड द वेज ऑफ नोइंग द टाइम ऑफ डे, कि टाइम ऑफ डे उनको पता लगाना था। So they made many devices which help them to measure small interval of time within a day. एक डे के अंदर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक दिन के अंदर स्मॉल जो है वो टाइम को मेजर करने के लिए क्या क्या निकाला। सम ऑफ दीज वर सनडाइल्स, वाटर क्लॉक्स, आवर ग्लासेस एंड कैंडल क्लॉक्स। इन द सनडाइल, आप देखो पिक्चर, दिस इज द पिक्चर। सनडाइल में क्या होता है, टाइम इज डिटरमाइंड विद द changing position of shadow of an object cast by the light of sun during the day। तो इसमें जैसे जैसे सन जो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे देखो
टाइम कैसे मेजर किया जाता है, सन की शैडो से इसको कास्ट किया जाता है। जैसे जैसे उसकी जो शैडो पड़ती है ना, तो उससे पता लगता है इनको कि क्या टाइम है। तो शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट कास्ट बाय द लाइट ऑफ सन, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शैडो को जब लाइट, सन की लाइट से वो सन की शैडो से वो मेजर करना चाहते थे, इससे उनको टाइम जो है एग्जैक्टली पता लग जाता है। Then the water clocks used the flow of water out or into a vessel to measure time. ठीक है, वाटर क्लॉक्स को वाटर के हेल्प से, वाटर जब वाटर गिरता था उसकी हेल्प से इनको पता लग जाता था कि एक टाइम को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, किसी और वेसल में पानी गिर रहा है। इन वन टाइप वाटर फ्लोड आउट फ्रॉम वन वेसल विच हैड मार्किंग फॉर टाइम, इन द अदर टाइप देयर वुड बी अ बाउल ऑफ फाइन होल एट द बॉटम which was floated on the surface of water. It gradually filled up in a fixed time and finally sank. Then it was lifted up and floated again. तो एक तो ऐसा वाटर था कि जिसमें दूसरे बाउल में पानी जो है वो जा रहा है, ठीक है, और एक जो था ना वो ऐसा बाउल था जिसके अंदर होल था बॉटम में। ठीक है, तो वैसे तो वो जो है ऊपर की तरफ जो वो होल था वो ऊपर की तरफ ही फ्लोट करता रहता था पानी। ठीक है, बट ग्रेजुअली जैसे ही उसको फिल्ड अप इन अ फिक्स टाइम एंड फाइनली सैंक, ठीक है, फिर एकदम से उसको उठाते थे तो वो फाइनली निकल जाता था एंड इट वाज लिफ्टेड एंड फ्लोटेड अगेन इन एन ग्लास आर। ये आर ग्लास में क्या होता है, आर ग्लास में जो है वो फ्लो ऑफ सैंड, सैंड की वजह से आपने ये देखा भी होगा, टाइम वाज मेजर्ड, जैसे सैंड जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पे गिरती थी, एक बल्ब से दूसरे बल्ब में आती थी, तो उसे हम बोलते थे आर ग्लास। ठीक है, तो इससे भी टाइम का पता लगता था। कैंडल क्लॉक वर कैंडल विद मार्किंग दैट इंडिकेटेड द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन बर्न्ड। ठीक है, कैंडल क्लॉक्स कौन सी थी, ऐसी कैंडल थी जिनके अंदर मार्किंग करी हुई थी और जैसे जैसे वो बर्न होती रहती थी वो टाइम बताती रहती, इंडिकेट द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन बर्न। Fascinating facts: the world's largest stone sundial, the Samrat Yantra, was built around 300 years ago at Jantar Mantar in Jaipur, Rajasthan, a UNESCO World Heritage Site that houses several astronomical instruments. तो एक लार्जेस्ट स्टोन सनडाइल, ठीक है, स्टोन के ऊपर इन्होंने एक लार्जेस्ट सनडाइल बनाया जिसका नाम रखा गया सम्राट यंत्र, और इसको 300 साल पहले बनाया गया, कहाँ पर, जंतर मंतर में, जंतर मंतर जो जयपुर राजस्थान में है। ठीक है, with its imposing height of 27 meters, its shadow moves at about 1 millimeter per second and falls on a scale finally marked to measure time intervals as short as 2 seconds. इसको बनाया गया, इसकी हाइट क्या थी, 27 मीटर, और जिस भी चीज़ की शेडो इस पे गिरती थी वो शेडो जो है वो 1 मिलीमीटर के हिसाब से जो है मूव करती थी और फॉल्स ऑन अ स्केल फाइनली, और उस स्केल पे जो उसके अंदर जो स्केल लगा हुआ था वो उसके ऊपर उसकी शैडो गिरती थी और फिर टाइम इंटरवल को जो है वो फाइंड किया जाता था, मेजर किया जाता था, जो कि 2 सेकंड से कम भी हो सकता था। ठीक है, एज शॉर्ट एज 2 सेकंड्स। ठीक है, 2 सेकंड्स का भी हो सकता था। लाइक एनी सनडाइल इट मेजर्स लोकल और सोलर टाइम रिक्वायरिंग अ करेक्शन टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये जो सनडाइल, लाइक एनी सनडाइल है, जो ये जो सनडाइल था ये लोकल और सोलर टाइम को भी जो है वो मेजर कर लेता था। ठीक है, कि लोकल टाइम क्या हुआ है और सोलर टाइम अकॉर्डिंग टू दी सन, क्योंकि सन की शेडो के अकॉर्डिंग जो है वो ये टाइम मेजर करता है। Should we make a simple water clock? Activity 8.1, let us construct. Take a used transparent plastic bottle, half liter or larger with its cap. आपने एक बॉटल लेनी है प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट हाफ लीटर की, उसकी कैप के साथ, ढक्कन के साथ। कट इट इनटू टू रफली इन द मिडल एज शोन। इसको 2 पार्ट्स में कट करना है। यूजिंग अ ड्राइंग पेन मेक अ स्मॉल होल इन द कैप ऑफ वाटर। ड्राइंग पिन डाल के आपने इसकी जो कैप है बॉटल की, इसमें आपने क्या करना है, एक होल बनाना है। प्लेस द अपर पार्ट ऑफ बॉटल इन एन इन्वर्टेड पोजीशन ओवर द लोअर पार्ट। ठीक है, अपर पार्ट जो आपने ऊपर बॉटल वाला जो पार्ट काटा है ना, जो कैप वाला पार्ट काटा है, उसको आपने उल्टा करके रखना है लोअर वाले पार्ट पे। फिल द अपर पार्ट ऑफ बॉटल विथ वाटर। अपर पार्ट को आपने ऊपर वाले पार्ट को जो है वो पानी से भरना है।
You may add a few drops of ink or color to make the water level easily visible. ठीक है, इसमें आप जो है वाटर के अंदर आप इंक या फिर और कोई कलर भी जो है वो डाल सकते हैं ताकि आपको वाटर लेवल पता रहे कि कितना है और दिखता रहे. The water will start dripping into the lower part of और जो वाटर है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा. Using a watch, mark the level of water after every 1 minute till all the water drips down. तो जब तक सारा पानी नीचे आता है तब तक आप एक लेवल मार्क कर लीजिए और आपने एक लेवल वाटर का मार्क करके हर मिनट में उसको मेजर करो. Your water clock is ready. Can you now guess how to use it? Pour the water from the lower part back into the top part and watch the level of water dripping into the lower part. Every time it touches a mark made by you, 1 more minute has passed. ठीक है, तो जैसे ये सारा पानी नीचे आ जाएगा फिर आपने दोबारा से ऊपर वाले में इसको शिफ्ट करना है और जैसे आप ये करते जाओगे ना एक्टिविटी तो हर एक इसमें एक एक मिनट ज़्यादा लगता जाएगा क्योंकि आप जब तक पानी डालोगे फिर वो नीचे आएगा फिर पानी डालोगे फिर वो नीचे आएगा तो एवरी जैसे ही वो मार्क जो आपने बनाया है वो उसको टच करेगा हर एक मिनट ज़्यादा होता जाएगा. 1 more minute has passed. Fascinating facts. In ancient India, time was measured using both shadows and water clocks. ठीक है, तो पहले के टाइम में शेडो यानी हमारी परछाई से, ठीक है, और वाटर क्लॉक, शेडो किसकी, सन की शेडो से, और वाटर क्लॉक, इन दोनों से टाइम को मेजर किया जाता था. द अर्लीस्ट रेफरेंस टू शैडो बेस्ड टाइम मेजरमेंट अपीयर्स इन अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य was composed and revised between the 2nd century BC, 3rd century CE. तो जो सबसे पहला अर्लीस्ट रेफरेंस है शैडो बेस्ड टाइम जो मेजरमेंट की गई थी वो सबसे अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने जो है वो उसके बारे में लिखा है. An accurate expression of time in terms of shadow of a vertical stick was given by Varamira around 530 CE. तो वारामिरा ने शैडो को वर्टिकल स्टिक के थ्रू जो है वो मेजर करना बताया था टाइम को. द वाटर क्लॉक विद वाटर फ्लोइंग आउट वॉज डिस्क्राइब्ड इन अर्थशास्त्र सरदुला कर्नावडान एंड सम अदर टेक्स्ट. तो अर्थशास्त्र में वाटर क्लॉक के बारे में ये जो वाटर क्लॉक हमने बनाई और इसमें वाटर फ्लो कर रहा है इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया. दीज क्लॉक्स वर नॉट एक्यूरेट बिकॉज एज वाटर लेवल ड्रॉप द फ्लो रेट डिक्रीज. तो जैसे जैसे पानी का लेवल जो है वो गिरता जाएगा, कम होता जाएगा, उसी तरह फ्लो रेट भी, जो पानी का जो फ्लो रेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. दिस लेट, तो ये एक्यूरेट नहीं है, जो हमें टाइम सही बताएं वो नहीं है. दिस लेट टू द डेवलपमेंट ऑफ सिंकिंग बाउल वाटर क्लॉक और घटिका यंत्र फर्स्ट मेंशन्ड बाय आर्यभट्टा एंड देन इन सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट लेटर. तो इसी वजह से एक सिंकिंग बाउल वाटर क्लॉक का इन्होंने जैसे हमने पढ़ा कि दो तरह के जो वाटर जो है वो वाटर क्लॉक बन सकते हैं. एक तो हमने अभी पढ़ा जैसे कि एक वेसल से दूसरे वेसल में जा रहा है, बट ये एक्यूरेट नहीं था. पर जो सेकंड वाला था सिंकिंग बाउल, उसको हम घटिका यंत्र भी बोलते हैं. इसको सबसे पहले आर्यभट्टा ने अपने उसमें मेंशन किया और उसके बाद बाकी एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट में भी इसका नाम आया. Time was measured constantly with Ghatika Yantra at Buddhist monastery, royal palaces, town squares, and each time the bowl sank, it was announced by drums, conch shells, or striking a gong. Though the Ghatika Yantra was progressively replaced by pendulum clocks in the late 19th century, it continued to be used at the religious places for rituals. तो घटिका यंत्र जो है ना पहले तो जैसे यूज़ किया जाता था कहाँ कहाँ मोनेस्ट्रीज़ में जहाँ बुद्धिस्ट लोग रहते थे, फिर उसके बाद रॉयल पैलेसेस में, टाउन स्क्वायर्स में, सब जगह यूज़ किया जाता था. और जैसे जैसे क्या होता था जो बाउल जो है वो नीचे होता जाता था तो क्या होता था टाइम को जो है अनाउंस किया जाता था ड्रम्स के थ्रू और बड़े बड़े गोंग्स बजाए जाते थे. बट घटिका यंत्र 19th सेंचुरी में पेंडुलम क्लॉक के साथ जो है वो इसको रिप्लेस कर दिया गया. ठीक है, बट आज भी कई कई जगह पर इसको यूज़ किया जाता है रिलीजियस प्लेसेस पे स्पेशली. As human civilization advanced and as people began to travel long distances, the measurement of time became very critical.
तो जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ती गई और लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, ठीक है, तो टाइम की मेजरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई. दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीजिंगली बेटर mechanical devices for the measurement of time driven by weights, gears and springs from the 14th century onwards. इस वजह से क्या हुआ कि बेटर मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ किए गए, जैसे वेट्स रख के, ठीक है, गियर्स रख के, स्प्रिंग्स रख के 14th सेंचुरी से. हाउएवर द इन्वेंशन ऑफ पेंडुलम क्लॉक इन 17th सेंचुरी मार्क अ मेजर ब्रेक थ्रू इन मैकेनिकल टाइम कीपिंग. तो 17th सेंचुरी में ये जो पेंडुलम क्लॉक थी ये जो है इन्वेंट की गई और इससे जो है बहुत फर्क पड़ा. ठीक है, यू कैन सी हियर द पेंडुलम. नो अ साइंटिस्ट. The pendulum clock was invented in 1656 and patent in 1657 by Christian Huygens. 1629-1695. He was inspired by the investigations of pendulum by Galileo Galilei. 1564-1642. It is said that once, while sitting in the church, Galileo's attention was drawn to the lamp suspended from the ceiling, which was swinging back and forth. Using his pulse to measure time, Galileo found that the lamp took the same time for each swing. After experimenting with different pendulums, Galileo concluded that the time taken to complete one oscillation was always the same for the pendulum of a given length. तो पेंडुलम क्लॉक किसने इन्वेंट की? क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने. ठीक है, और वो किससे इंस्पायर थे? जो इन्वेस्टिगेशन या जो जांच पड़ताल गैलीलियो ने की थी. और ऐसा बोला जाता है कि एक बार वो जो है वो चर्च में बैठे थे तो उनकी अटेंशन जो है वो लैंप की तरफ गई जो सीलिंग से आ रहा था, एक लैंप. ठीक है, तो एक जो लैंप था वो सीलिंग से आ रहा था और वो स्विंग कर रहा था. ठीक है, स्विंग करने के बाद क्या हुआ कि वो कभी आगे जा रहा था, कभी पीछे जा रहा था. ठीक है, आगे जा रहा था तो उसे हम फोर्थ बोलेंगे, पीछे जा रहा था तो उसे हम बैक पोजीशन बोलेंगे. तो गैलीलियो ने ये नोटिस किया कि हर बार जब वो स्विंग कर रहा था, जो लैंप है वो सेम टाइम ले रहा था. ठीक है, उस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए. मतलब ऐसा नहीं था कि वो आगे ज़्यादा जा रहा था और पीछे कम जा रहा था, ऐसा नहीं था. बिल्कुल दोनों तरफ सेम पोजीशन और सेम टाइम ले रहा था वो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए. A simple pendulum. Now we'll understand what is a pendulum. A simple pendulum consists of a small metallic ball called the bob of the pendulum. If you can see in this picture, see this is the pendulum, picture of pendulum और यहाँ पर ये bob है. ठीक है, so ये एक metallic ball है. ठीक है, suspended from a rigid support by a long thread. ये एक thread है. ठीक है, The pendulum at rest is in its mean position. जब पेंडुलम अपने रेस्ट पे है, मतलब यहाँ से मूव नहीं कर रहा, तो वो क्या है? अपनी जो है मीन पोजीशन पे है, या फिर हम बोल सकते हैं वो रेस्ट पे है. When the bob of the pendulum is moved slightly to one side and released. जब इस बॉब को रिलीज किया जाता है तो ये पेंडुलम कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ से ये पेंडुलम वापस आएगा तो ये रेस्ट पे हो जाएगा. ठीक है, फिर ये पेंडुलम कहाँ जाएगा? ये यहाँ जाएगा इस पोजीशन में, और फिर पेंडुलम वापस आएगा, रेस्ट पे जाएगा. ठीक है, तो व्हेन द bob of pendulum is moved slightly to one side and released, it starts oscillatory motion. तो इस मोशन को हम oscillatory motion बोल रहे हैं. Its motion is periodic in nature because it repeats its path after a fixed interval of time. तो सबसे पहला मोशन हमने जो यहाँ पढ़ा वो है पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जो एक पाथ को रिपीट करता है एक आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, तो ये बॉब जो है ये जो यहाँ पर रेस्ट पर है. ठीक है, और जब ये मूव कर रहा है, जब ये मोशन में आ रहा है तो ये एक साइड मूव कर रहा है बैक एंड फ्रॉथ. ठीक है, बैक एंड फ्रॉथ पोजीशन में आ रहा है. और जो भी ऐसा मोशन होता है उसे हम पीरियोडिक बोलते हैं क्योंकि वो अपना पाथ रिपीट कर रहा है. ठीक है, पाथ को रिपीट कर रहा है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम.
We did an activity in chapter measurement of length and motion in grade 6 science textbook curiosity where we observed the oscillatory motion of an eraser hung with a thread. Is a pendulum similar to that? तो हमने एक एक्टिविटी ऑलरेडी 6 स्टैंडर्ड में ये करी थी कि जहाँ पर हमने इरेजर को थ्रेड से जो है हंग करा था। ठीक है, तो पेंडुलम क्या इसी के सिमिलर है? The pendulum is said to have completed one oscillation when its bob, starting from its mean position O, moves to extreme position A, changes direction and moves to another extreme position B. तो ये आपको मैंने समझा दिया अभी पहले वाली पिक्चर में कि changes direction and come back to O. ठीक है, O जो है वो मीन पोजीशन है, मीन्स O पे बॉब जो है वो रेस्ट पे है। पहले वो A में जाएगी, A की तरफ जाएगी, जो पेंडुलम है वो एक ही तरफ जैसे ही जाएगा तो वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, फिर वो वापस ओ पे आएगा और उसके बाद वो बी पे जाएगा। ठीक है, द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन ए टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी एंड कम्स बैक टू ए। तो जैसे ही पेंडुलम ए पोजीशन से बी तक आता है और वापस ए पे जाता है उसे हम बोलते हैं एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। The time taken by a pendulum to complete one oscillation is called time period. और इसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। किसको? जो पेंडुलम टाइम लेता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में। ऑसिलेशन क्या है? जैसे ए पोजीशन से बी तक गया फिर वापस ए पे आया, तो ये एक पूरी ऑसिलेशन है ये जो कंप्लीट हो। Now let us set up a pendulum and measure its time period. Activity 8.2, let us experiment. Collect a piece of string around 150 cm long, a heavy metal ball with hook, a stone bob, a stopwatch, watch एंड अ रूलर। ये सब चीज़ें आपको जो है कलेक्ट करनी है। क्या क्या? एक स्ट्रिंग का पीस जो 150 सेंटीमीटर लॉन्ग हो, एक हैवी मेटल बॉल लेनी है आपको, ठीक है, स्टोन भी ले सकते हो आप, ठीक है, और उसके साथ स्टॉप वॉच और रूलर। टाई द बॉब एट वन एंड ऑफ स्ट्रिंग के एक एंड पे आपने इस बॉब को, इस स्टोन को या जो आपने बॉल ली है उसको टाई करना है। फिक्स द अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग टू अ रिजिड सपोर्ट सच दैट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन बिटवीन सपोर्ट एंड बॉब इज अराउंड 100 सेंटीमीटर। तो दूसरे एंड पे आपने क्या करना है, स्ट्रिंग के फिक्स द अदर एंड ऑफ स्ट्रिंग टू रिजिड सपोर्ट सच दैट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो आपने दूसरी तरफ इसको फिक्स करना है ताकि जो बॉब है, बॉब और सपोर्ट के बीच में 100 सेंटीमीटर का जो है वो डिफरेंस रह जाएगा। वेट फॉर द बॉब टू कम टू रेस्ट। फिर इसको आपने क्या करना है, आपने रुकना है अभी जब तक कि बॉब जो है वो रेस्ट पे ना आ जाए, मतलब वो मूव ना कर रहा हो। योर पेंडुलम इज नाउ रेडी। Gently hold the bob, move it slightly to one side and release it. एक तरफ से बॉब आपको खींचकर दूसरी तरफ लेकर जानी है, ठीक है। टेक केयर नॉट टू पुश द बॉब while releasing it and the string is stopped. Is your pendulum now oscillating? तो आपने क्या करना है, एक तरफ से आपको लेकर होल्ड करके बॉब को दूसरी तरफ की उसको दूसरी तरफ जो है वो दूसरी तरफ रिलीज करना है। यूजिंग अ वॉच मेजर द टाइम टेकन। आपने फिर टाइम मेजर करना है कि ये जो आपकी जो बॉब घूम रही है, ठीक है, 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने हैं इस पेंडुलम को, तो आपको उसका टाइम मेजर करना है, ठीक है, कि 10 ऑसिलेशन करते करते ये जो है ये कितना टाइम लेती है। रिकॉर्ड द टाइम इन टेबल 8.1। Repeat this activity 3 to 4 times. Divide the time taken for 10 oscillation by 10 to calculate the time period of your pendulum. Note it down in table 8.1. अब टेबल 8.1 में आपको इसको नोट डाउन करना है, ठीक है, कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हो गई है, 100 सेंटीमीटर। टाइम टेकन बाय 10 ऑसिलेशन सेकेंड्स में आपने बताना है। 3 बार हमने इस एक्टिविटी को करना है, ठीक है। अब फर्स्ट बार मैंने जब किया तो ये क्या आया, 10.1 सेकेंड आया, ठीक है। टोटल टाइम 10 ऑसिलेशंस को करने में 10.1 सेकेंड आया। टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड हो गया यहाँ पर सेकेंड्स में 1.01। देन सेकेंड टाइम जब मैंने किया तो 10.2 सेकेंड्स आया, टाइम पीरियड 1.02। थर्ड टाइम 10.3 सेकेंड्स,
time period 1.03. Is the time period of a pendulum almost the same every time? What do you conclude from this observation? The time period of pendulum is almost same every time. तो ये almost same ही रहेगा every time. ठीक है, 10.1 है तो यहाँ भी जो time period है वो same है. ठीक है, almost it is same. So this way you have to fill this table 8.1. Think like a scientist. You just did an important historical experiment which was first done by Galileo, except you used a watch to measure time in place of your pulse beat. Suppose you were Galileo experimenting with pendulums. What all would you investigate? What questions could you ask? Would all pendulums have same time period? How would you test this? Repeat activity 8.2 using the same bob but the pendulums of 2 or 3 different lengths. Does the time period change? If so, how does the length affect it? Okay, now what you have to do, in this you have to be a scientist like Galileo. और आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी को रिपीट करना है. जो 8.2 हमने एक्टिविटी है, इसमें आपको जो है वो 3 डिफरेंट लेंथ्स लेनी है. जैसे अभी हमने 150 ली थी, 150, 100, 50, इस तरह की आपको लेंथ लेनी है. ठीक है, अब जब आप डिफरेंट लेंथ लेंगे तो क्या होगा, क्या टाइम पीरियड चेंज होगा, ये बताना है. टेस्ट this by repeating activity with a fixed pendulum length but with bob of different mass. ठीक है, अब एक बार आपने क्या करना है, एक बार आपने अलग अलग लेंथ की जो है स्ट्रिंग लेनी है और एक बार आपने अलग अलग वेट के आपने बॉब्स लेने हैं, स्टोन्स लेने हैं. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज? द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ बट नॉट ऑन द बॉब्स मास. ठीक है, तो टाइम पीरियड जो एक सिंपल पेंडुलम का हम कैलकुलेट करते हैं वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है. यानी कि जो स्ट्रिंग है अगर वो छोटी या बड़ी होगी तो वो उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, बट उसके वेट पर डिपेंड नहीं करेगा, बॉब के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. ऑल पेंडुलम्स ऑफ सेम लेंथ हैव सेम टाइम पीरियड एट द गिवन लोकेशन. अगर किसी भी पेंडुलम, ऑल पेंडुलम्स, सारे पेंडुलम्स जो सेम लेंथ, जिनकी सेम लेंथ है, ठीक है, तो उनका टाइम पीरियड भी सेम ही आएगा. ठीक है, अगर स्ट्रिंग की सेम लेंथ है तो टाइम पीरियड भी उन पेंडुलम्स का जो है वो सेम आएगा. द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ गिवन लेंथ इज कांस्टेंट एट अ प्लेस. ठीक है, तो जो टाइम पीरियड आप मेजर करेंगे एक सिंपल पेंडुलम का, वो किसी भी लेंथ का जो आप लेंथ, वो एक कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा. दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ टाइम. और इसी प्रॉपर्टी को हम टाइम के मेजरमेंट में यूज करते हैं. All clocks, old or modern, are based on some process repeating continuously which can be used to mark equal intervals of time. ठीक है, सारी क्लॉक्स जो हम पुरानी या फिर नई जो हम यूज़ करते हैं वो किसी रिपीटिंग, दे आर रिपीटिंग सम प्रोसेस. ठीक है, वो किसी प्रोसेस को रिपीट कर रही है. ठीक है, और उस पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो मार्क कर रखे हैं. Modern clocks measure time using the same basic principle, periodically repeating processes, but use tiny and very rapid vibrations either from quarters crystal, quarters clock, or from specific atoms, atomic clocks. While Huygens' early pendulum clocks could gain or lose 10 seconds every day, today's atomic clocks are so precise that they lose only 1 second in million of years. Scientists are constantly searching for even better ways to measure time with the greater accuracy. ठीक है, तो मॉडर्न क्लॉक्स जो हैं, आजकल की जो क्लॉक्स हैं वो जो है वो किस चीज़ से बनी हुई? दे आर मेड अप ऑफ, दे आर क्वार्टस क्लॉक्स या फिर वो अटोमिक क्लॉक्स हैं. ठीक है, तो जो पहले की जो क्लॉक्स बनी थी, जो पेंडुलम क्लॉक्स थी, वो कहीं ना कुछ 10 सेकेंड्स जो है वो छोड़ देती थी, मतलब उनमें क्लॉक्स में कुछ चीज़ आगे पीछे हो सकती थी क्योंकि वो पेंडुलम क्लॉक्स थी. बट आज की जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं वो इतनी प्रिसाइज है, इतनी करेक्ट है कि वो 1 सेकेंड भी मिलियन ऑफ ईयर्स में जाके खोएंगी. मतलब ऐसा, इतनी एक्यूरेट वो टाइम मेजर करती हैं.
ठीक है. एंड साइंटिस्ट दे आर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर इवन बेटर वेज कि हम और किस तरीके से टाइम को मेजर कर सकते हैं प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ. ठीक है. So these are some of the pictures, some common clocks and watches which we use today. Okay. So we will do up till here only. I hope you have understood that what is a simple pendulum and how does it works and how it helps to measure the time, and the other things like sundials, candle clocks, water clocks, how they helped our ancestors to measure time. Now I'll meet you soon in the next video where we'll continue this chapter in part 2 explanation. So up till then, goodbye.